Okay. So once again, good evening, everyone. Let's start with chapter 3, lecture 3 of Kant's philosophy. So ये chapter based है on the aphorism number 3, है ना? तो हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे क्या है इसमें. Aphorism 3, perfection of what is curable in disease, curative in medicine, and the application of last to first. जो aphorism है वो पढ़ेंगे हम. If the physician clearly perceive what is to be cured in diseases, that is to say, in every individual case of disease, if he clearly perceives what is curative in medicine, that is to say, in each individual medicine, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that recovery must ensure to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, and the proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of the healing art. तो ये तो था एफोरिज्म, है ना? अब हम इस एफोरिज्म का डिस्क्रिप्शन क्या है वो समझते हैं. इस एफोरिज्म में हमें बहुत सी लाइंस पढ़ने पे क्लियर होती है, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो कैंसर समझाते हैं वो हम समझते हैं. So the translator has correctly used here the word perceive, which is to see into, not merely to look upon with external eye, but to clearly understand, to apprehend with the mind and understanding. तो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है सबसे पहली लाइन में कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, मतलब हम एज अ फिजिशियन अगर हम अच्छी तरीके से उस चीज को सिर्फ देखेंगे नहीं, फिजिकल रूप में सिर्फ देखना नहीं, हाँ ये ट्यूमर है, हाँ ये पिंपल्स है, हाँ ये ऐसा है, सिर्फ देखा नहीं, उसे समझा, उसे परसीव किया. तो इसीलिए वो वर्ड, हर वर्ड का ऑर्गेनॉन में बहुत इन डेप्थ मीनिंग होता है. तो इसीलिए यहाँ लिखा है द ट्रांसलेटर हैज करेक्टली यूज्ड हियर द वर्ड परसीव, विच इज टू सी इनटू, मतलब अंदर देखना, उसमें झांकना. नॉट मियरली टू लुक अपॉन विद द एक्सटर्नल आई, सिर्फ बाहरी आंखों से देख लेना, सिम्टोमेटोलॉजी को समझ लेना, वो ही नहीं, उसकी डेप्थ को समझना इज इंपॉर्टेंट. टू परसीव द सिम्टम इज इंपॉर्टेंट, बट टू क्लियरली अंडरस्टैंड, to apprehend with the mind and understanding. If Hahnemann had said see instead of perceive, it might have been taken to mean seeing with the eye a tumor to be cut, or by opening the abdomen to see the deceased kidney, or by examination of the urine to see that there is albumin or sugar present, by removing which in some mysterious way the patient would be cured. तो अगर हैनीमैन सर इस परसीव वर्ड की जगह सी वर्ड यूज कर दे कि हाँ देखिए, सिर्फ देखिए, तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ ये ट्यूमर है, इसे देख लो, अब इसे ठीक कैसे करना है, कट कर दो. एब्डोमेन है, एब्डोमेन को खोल के देख लो, किडनी जो डिसीज है. बट उन्होंने ना सी वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने वर्ड यूज किया कि वी हैव टू परसीव, हमें इन डेप्थ जाना है, सिम्टोमेटोलॉजी को अंदरूनी रूप से डीप लेवल पे उसे समझने की कोशिश करना है. Removing in some mysterious way, the patient would be cured. It is evident by this that Hahnemann did not look upon pathological change or morbid anatomy as that which in disease constitutes the curative indication. मैं वापस पढ़ता हूँ. It is evident by this that Hahnemann did not look upon pathological change or morbid anatomy as that which in disease constitutes the curative indication.
The physician must perceive in the disease that which is to be cured, and the curative indication in each particular case of disease is the totality of the symptoms. That is, the disease is represented or expressed by the totality of symptoms, and this totality, which is the speech of the nature, is not itself the essay of the disease. It only represents the disorder in the internal economy. तो हमें ओवरऑल पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलता है? हमें ओवरऑल पेशेंट में देखने के लिए मिलता है सिम्टोमेटोलॉजी। और उस सिम्टोमेटोलॉजी को अगर हम गहराई से सिर्फ ऊपरी ऊपरी देखते हुए ना ही उसे परसीव करके अगर हम टोटलिटी क्रिएट करें, उस टोटलिटी को समझे और उसे क्योर करें, तो क्योंकि हमें पता है टोटलिटी मतलब क्या है। इंटरनल डिस्टरबेंस जो भी कॉज हुआ है, उस इंटरनल डिस्टरबेंस ने उस सब चीजों को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली जो है वो थ्रो किया है। और वो थ्रो करने के बाद हम उस सब को कंसिडर करके टोटलिटी बिल्ड, और उसी टोटलिटी पे फोकस करके अगर हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे तो द पेशेंट विल गेट बेटर। है ना? तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है पेशेंट में कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड। हमें पेशेंट में क्योर क्या करना है। उसका हम नॉर्मल नेचर ले ले, पैथोलॉजिकल स्टेट नहीं ले, तो हम गड़बड़ कर देंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमारे सामने जो पेशेंट बैठा है उसमें क्यूरेटिव क्या है, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, वो किस कंप्लेंट के साथ आया हुआ है, और उन सब चीजों को लिंक करके एक टोटलिटी बनाना है। वो टोटलिटी पे हमें प्रिस्क्राइब करना है। तो मैं ये वापस से एक बार पढ़ता हूँ। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बिकॉज ऑर्गेनॉन ये पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिस्क्रिप्शन में हमें बहुत हेल्प करता है अगर हमें थियरी पता होती है तो हम थोड़ा धीरे जाएंगे। ओके। द फिजिशियन, मैं वापस द फिजिशियन से पढ़ रहा हूँ। The physician must perceive in the disease that which is to be cured, and the curative indication in each particular case of disease. तो the curative indication हर particular case में क्या है? Totality of symptom. That is, the disease is represented or expressed by totality of symptoms. And this totality का मतलब क्या है? Totality is equal to the speech of nature. जो हमारा इंटरनल नेचर है वो हमें टोटलिटी के रूप में हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके डिस्टरबेंस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द टोटलिटी। So this totality is not itself the essay of the disease. It only represents the disorder in the internal economy. This totality, which is really external, a manifestation in the tissues, will arrange itself into form to present, as it were, to the physician the internal disorder. So the first thing to be considered in a case is, तो पहली चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए केस में वो है, the first thing to be considered in a case is what are the curative indications in the case. तो केस में क्यूरेटिव क्या क्या है, क्यूरेटिव इंडिकेशंस क्या क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। What signs and symptoms call the physician's attention as curative signs and symptoms. ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें एज अ फिजिशियन क्यूरेटिव साइन एंड सिम्टम्स की तरह दिखते हैं। एंड दिस मीन्स नॉट एवरी मैनिफेस्टेशन इज अ क्यूरेटिव इंडिकेशन। और ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर साइन एंड सिम्टम, हर मैनिफेस्टेशन एक क्यूरेटिव इंडिकेशन नहीं होता है। कुछ चीजें होती है जो नॉर्मल नेचर को बिलोंग करती है, जो चीजें क्योर नहीं करनी चाहिए, जो चीजें हमें हमारी टोटलिटी में कंसिडर नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें एक्चुअल में होती है जो क्यूरेटिव नहीं होती। तो हमें एज अ फिजिशियन सबसे पहले पेशेंट में ये देखना है कि व्हाट इज क्यूरेटिव, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स आर टू बी क्योर्ड। है ना? The result of disease occurring in the tissues, the results of disease occurring in the tissues in chronic diseases such as cancerous changes, tumors, etc., or are of such a character that they cannot constitute curative signs, but those things which are curable, which are capable of change, which can be materially affected by the administration of remedies, the physician must know they are the curative indication. तो curative indication क्या होता है? हमें ये बताया जा रहा है कि curative indication वो होता है, हमें वो चीजें देखना है which are curable,
विच आर केपेबल ऑफ चेंज, जो चीजें हम देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ ये चीजें चेंज हो सकती है अगर हम राइट रेमेडीज है, तो हमें वो चीजें उठाना है. वी हैव टू पिक अप ओनली दोज थिंग्स विच आर कैपेबल ऑफ चेंज and which can be materially affected by the administration of remedy. और ऐसे symptoms जो सच में बदले जा सकते हैं by giving the right remedy, by giving the exact remedy. And the physician must know they are the curative indication. और हमें ये पता होना चाहिए कि all this which can be changed, which can be altered, which can be materially affected by giving the right remedy are the curative indications. तो हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है पेशेंट में. ठीक है. So the physician ought to have a well-grounded idea of government and law to which there are no exceptions. He ought to see the cause of disease action to be from center to circumference. तो हमें center to circumference देखना है, circumference to center नहीं. So we have to see, he ought to see the cause of disease action to be from center to circumference, from the innermost of the man to the outermost. And if law and government are present, then law directs every act taking place in the human system. Every government is from the center to the circumference. Look at it politically. तो हम पॉलिटिकली भी देखिए कि सरकार पहले सेंटर में बनती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है. सो इसी वे में वी हैव टू थिंक कि ये हमारा एक ह्यूमन सिस्टम जो है वो भी सबसे पहले सेंटर में अफेक्ट होता है. देन द थिंग्स आर अफेक्टेड जो सरकमफेरेंस में है, जो आउटर मोस्ट पार्ट में है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है. तो हमें सबसे पहले जो देखना है वो है इनर मोस्ट. हमें जो सबसे पहले देखना है वो है सेंटर. हमें फिर बाद में जो देखना है वो है सरकमफेरेंस. ठीक है. तो मैं वापस से पढ़ता हूँ. द फिजिशियन ought to have a well grounded idea of government and law to which there are no exceptions. तो इसके लिए कोई exceptions नहीं. ये चीज रिलेट करी जा रही है गवर्नमेंट से कि हमें समझ में आए, और ये लॉ है, नेचर का लॉ है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. हर इंसान में सेम तरीके से होता है, तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. एंड ही ought to see the cause of disease action to be from center to circumference, from the innermost of the man to his outermost. If law and government are present, then law directs every act taking place in the human system. Every government is from the center to the circumference. Look at it politically. Whenever the system of central political government is not bowed to, anarchy and loss of confidence prevail. There are also commercial centers. We must recognize London, Paris, and New York as centers of commercial government in their different spheres. Even the spider entrenches himself in the web and govern his universe from the center. There cannot be two governments. Such would lead to confusion. There is but one unit in every standard. So we are as a standard. Human is as a standard. और हर चीज में एक ही चीज हो सकती है जो रूल कर सकती है. देयर कैन बी, मतलब अगर हम लॉ की बात करें तो नेचर्स लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अगर ह्यूमन से कंसर्न है. तो इन दिस वी नो कि एक ही चीज है जो चला रही है, दैट इज सेंटर. और अगर आप इसे पॉलिटिकली भी रिलेट करेंगे तो उसमें भी ऐसा होता है. ऑल द थिंग्स जो सर्कमफेरेंस में चल रही है, जो बाहर चल रही है, वो एक जगह सेंटर में बैठ के रूल होती है. तो इसी तरीके से हमारा बॉडी भी है. इन मैन द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट इज इन द सेरेब्रम. तो इन मैन हमारा जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है वो सेरेब्रम में है. एंड फ्रॉम इट एवरी नर्व सेल इज गवर्नड. और वहां से हर नर्व सेल जो है वो गवर्नड है, वो चली जा रही है, वो क्या बोलते हैं, is running. And from it all actions take place for good or evil. और यहीं से हर एक्शन टेक प्लेस करती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो. एंड फॉर ऑर्डर और डिसऑर्डर, चाहे वो ऑर्डर हो या डिसऑर्डर हो, हर चीज, हर एक्शन, फ्रॉम इट डिसीज बिगिंस एंड फ्रॉम इट बिगिंस द हीलिंग प्रोसेस. और यहीं से बीमारी का जन्म होता है, और यहीं से ट्रीटमेंट का या क्योर का या हीलिंग का प्रोसेस भी बिगिन होता है. So it is not from the external things that man becomes sick.
not from bacteria nor environment but from the causes in himself. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें एज अ होम्योपैथ समझते तो है, बट हम ये इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इट इज नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग दैट द मैन बिकम्स सिक, नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया नॉट फ्रॉम एनवायरमेंट बट फ्रॉम द कॉजेज इन हिमसेल्फ। इंसान अपने खुद के अंदर के जो कॉजेज है वो चीजें इंसान को बीमार बनाती, जो बैक्टीरियाज है वायरसेस है, ये सब तो एंड प्रोडक्ट है। एक बार डिसीज इंटरनल जन्म ले लेती है उसके बाद ये सब चीजें आने लगती है और माइक्रोस्कोपिकली हमें देखने के लिए मिलती है। या तो ये चीजें उस प्रॉब्लम को बाद में एग्रेवेट करती है, बट ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर जिसे हम कंसिडर करते हैं दे कैन एक्साइड द बीमारी डिसीज, पर वो खुद एक कॉज नहीं बन सकती। सो द यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉज इज इन हिमसेल्फ, इंसान के खुद के अंदर उसका कॉज होता है। एंड इट इज नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग्स दैट मैन बिकम्स सिक, नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया नॉर एनवायरमेंट बट फ्रॉम कॉजेज इन हिमसेल्फ। इफ द होम्योपैथ डज नॉट सी these, he cannot have a true perception of disease। और अगर हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अगर हम इस सेंटर को नहीं देखेंगे जो सच में डिरेंज हुआ है, जहां से बिना बीमारी का जन्म हुआ है, और हम सिर्फ एक्सटर्नल चीजों को, टिश्यू चेंजेस को, एंड प्रोडक्ट को देखेंगे, तो वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिसीज इन इट्स होल एस्पेक्ट, है ना। तो हमें डिसीज का एक्चुअल परसेप्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। एंड इफ द होम्योपैथ डज नॉट सी दिस, he cannot have a true perception of the disease। Disorder in the vital economy is the primary state of affairs, and this disorder manifests itself by sign and symptom। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर आता है इंसान के अंदर वो आता है उसके वाइटलिटी, वो हम जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स। वो जैसे ही डिरेंज होता है, तो डिरेंज होने के बाद हमें कैसे समझ में आएगा, तो हमें समझ में आता है इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। बॉडी साइंस एंड सिम्टम्स थ्रो करती है ताकि हमें पता चले कि हमारा वाइटलिटी जो है वो डिरेंज हो चुका है, उसका इक्विलिब्रियम जो है वो बिगड़ चुका है। तो हमें सेंटर पे फोकस करना है ना। तो हम जो बोलते हैं रूट कॉज दैट इज ये सेंटर। डिसऑर्डर इन द वाइटल इकोनॉमी इज द प्राइमरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, सबसे पहले हमें वहां फोकस करना है। एंड दिस डिसऑर्डर मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय साइन एंड सिम्टम्स। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आई नो काफी लोगों के लिए थियरी बिकम्स वेरी बोरिंग, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम इसे समझते हैं तो हम अप्लाई करने के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ू। आई होप सभी को क्लियर होगा। इन परसीविंग what is to be cured in disease, in perceiving what is to be cured in disease, one must proceed from generals to particulars। तो अगर हमें जानना है कि what is to be cured in disease, हमें सबसे पहले हमारी शुरुआत करनी चाहिए from generals, और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए towards particulars। From generals to particulars, study disease in its most general feature, not as seen upon one particular individual, but upon the whole human race। We will endeavor to bring this idea before the mind by taking an example, one of the acute miasms, not for the purpose of diagnosis, as this is easy, but to arrange it for a therapeutic examination। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस टेक एन एपिडेमिक। एक हम एपिडेमिक की बात कर रहे हैं, लेट अस टेक एन एपिडेमिक से ऑफ स्कारलेट फीवर और ग्रिपे और measles और कोलेरा। तो इनमें से कोई भी एक एपिडेमिक की हम बात कर रहे हैं। इफ द एपिडेमिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग that has hitherto appeared in the neighborhood, it is at first confusing। तो अगर ये एपिडेमिक जो हो रही है वो वहीं के आसपास, उसी एरिया के आसपास नेबरहुड में कहीं पे कोई बीमारी हुई हुई है, उससे अगर टोटली डिफर कर रही है, तो सबसे पहली बात तो इट इज कंफ्यूजिंग, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। And from the first few cases, the physician has a very vague idea for this disease, for he sees only a fragment of it and gets only a portion of its symptom। तो मैं पहले पढ़ता हूँ पूरा पैराग्राफ और फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। So, from the first few cases, the physician has a very
vague idea of this disease, for he sees only a fragment of it and gets only a portion of its symptoms. But the epidemic spreads and many patients are visited, and 20 individuals have perhaps been closely observed. Now, if the physician will write down all the symptoms that have been present in each case in schematic form, arranging the mind symptoms of the different patients under mind and the head symptoms under head, and so on, following Henneman's method, they considered collectively will present one image, as if one man had expressed all the symptoms. And in this way, he will have that particular disease in an schematic form. If he places opposite, if he places opposite each symptom a number corresponding to the number of patients in which that symptom occurred, he will find out the essential feature of the epidemic. तो देखिए अभी तक जो बात की जा रही है दैट इज वेरी सिंपल कि अगर एक एपिडेमिक आया तो एपिडेमिक की शुरुआत में सपोज इट इज अ वेरी न्यू एपिडेमिक हमारे लिए नया है तो शुरुआती के जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो पेशेंट्स हमारे लिए जो सिम्टम्स दे रहे हैं वो हमारे सामने एक वेग पिक्चर बनाएगा सपोज कोरोना कि कोरोना में ये भी हो सकता था कोई पेशेंट बोलता है ये कोई बोलता है ये कोई बोलता है ये ऐसा तो ऐसे करते करते शुरुआती के कुछ पेशेंट्स में हमें थोड़ी धुंधली धुंधली पिक्चर दिखती है कि हाँ ये एपिडेमिक में क्या हो सकता है बट सपोज से उस इंसान ने उस डॉक्टर ने बहुत सारे पेशेंट देख लिए 20 25 50 पेशेंट देख लिए और हर पेशेंट को उस डॉक्टर ने केयरफुली एग्जामिन किया तो उसने ये पाया कि ये सपोज 20 पेशेंट है 20 पेशेंट में माइंड सिम्टम्स जो मिले वो ये थे तो उसने अरेंज कर दिए ये 20 पेशेंट में हेड के सिम्टम्स जो मिले वो ये थे उसने अरेंज कर दिए इस 20 पेशेंट में स्टमक के सिम्टम जो थे वो उसने अरेंज कर दिए इन 20 में रेक्टम के सिम्टम या जॉइंट के सिम्टम जो थे वो ये थे तो आप देखेंगे तो हम जिसे प्रूविंग में करते हैं एक पूरा ड्रग पिक्चर बना देते हैं माइंड हेड ये वो सब पूरा हैनीमैन स्कीमा में तो इसी तरीके से उसने इस क्या बोलते हैं एपिडेमिक में एक जनरल पिक्चर बना दी और सपोज हर सिम्टम के सामने उस इंसान ने उस पेशेंट ने उस डॉक्टर ने लिख दिया सपोज नंबर 1 वाला जो सिम्टम है वो सिम्टम 20 में से 10 लोगों में देखा गया नंबर 2 वाला जो है वो लगभग 5 ही लोगों में देखा गया नंबर 3 देखा गया बट वो सिर्फ 3 ही लोगों में देखा गया नंबर 4 वाला जो था वो लगभग 18 लोगों में देखा गया तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा कि कौन सा पिक्चर जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है तो इससे हमने एक जनरलाइज्ड इमेज क्रिएट कर ली एक एपिडेमिक की है ना तो अभी तक जो समझाया है वो ये था जो मैंने आपको बताया तो अब यहाँ एग्जाम्पल की बात करिए फॉर एग्जाम्पल 20 पेशेंट्स हैड एकिंग इन बोन्स 20 पेशेंट में था हड्डियों में दर्द एकिंग इन द बोन एंड एट वंस ही सीज दैट सिम्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस एपिडेमिक और उसने देख लिया कि भाई ये 20 की 20 में है तो ये सिम्टम तो है एपिडेमिक का पार्ट ये बात तो पक्की है all the patients had catarrhal affections of eye and a measly rash, and this also must be recorded as pathognomic symptom. तो उन्होंने देखा कि आंखों में कैटारल अफेक्शन है मीजली रैश है और उसने ये चीज को भी रिकॉर्ड करा एज अ पैथोग्नोमिक सिम्टम and so by taking the entire scheme and studying it as a whole, as if one patient had experienced all the symptoms, he is able to perceive how this new disease, this contagious disease, affects the human race and each particular patient, and he is able to predicate of it what is general and what is particular. तो अगर हमने ये पूरी इमेज देखी तो हमें ये समझ में आएगा कि ये पूरी इमेज को हमें एक इंसान की तरह दे एक नई पिक्चर की तरह दे तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज जनरल इन दिस डिसीज व्हाट इज पर्टिकुलर इन दिस डिसीज और उस एपिडेमिक का हमारे सामने एक जनरल आइडिया आ गया कि आदमी क्या क्या सिम्टोमेटोलॉजी से प्रेजेंट कर सकता है तो सो बाय टेकिंग द एंटायर स्कीम एंड स्टडिंग इट एज अ होल ऑफ one patient and experienced all the symptoms he is able to perceive how this new medicine, this contagious disease affects the human race and each particular patient, and he is able to predicate of it what is general and what is particular. यहाँ तक हमने पढ़ लिया. Every new patient has a few new symptoms. He has put
his own stamp on this disease. Those symptoms that run through all are the pathognomic symptoms. Those which are rare are the peculiarities of the different people. And this totality represents to the human mind as nearly as possible the nature of the sickness, and it is this nature that the therapeutic must have in mind. तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ये ओवरऑल एक पिक्चर बना ली। ओवरऑल पिक्चर बनाने के बाद में हर नया पेशेंट जो आएगा वो पॉसिबिलिटी है कि वो अपना कुछ तो एलिमेंट देगा कि हाँ ये सब में से कुछ कुछ सिम्टम्स तो मेरे को भी है, बट मेरे में ये एक यूनिक फीचर। सेकंड पेशेंट आएगा वो बोलेगा मेरे में ये एक यूनिक फीचर, तीसरे में कुछ और यूनिक फीचर आएगा। तो जनरल आइडिया से हमें एक जनरल थेराप्यूटिक इंडिकेशन तो समझ में आ गया, बट हर पेशेंट जो अपना अपना एक एक दो दो यूनिक फीचर बताएगा, दैट विल बिकम पेक्यूलियर टू टू दैट पेशेंट। तो वो पेशेंट का पेक्यूलियरिटी होगा इन दैट एपिडेमिक, है ना। सो दिस टोटलिटी रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन माइंड एज नियरली एज पॉसिबल द नेचर ऑफ द सिकनेस। ये हमने ओवरऑल जो टोटलिटी बताई थी, वो ओवरऑल टोटलिटी नेचर ऑफ सिकनेस बताता है। नेचर ऑफ दैट एपिडेमिक के कारण जो साइन एंड सिम्टम आ रहा है वो सिकनेस को एज अ होल डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। एंड इट इज दिस नेचर दैट द थेराप्यूटिक मस्ट हैव इन माइंड। एंड नाउ लेट हिम टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, which is to find in general the remedies that correspond to this epidemic। तो देखिए हमारे पास में जैसे एक टोटालिटी आती है पेशेंट की टोटालिटी आने के बाद हम क्या करते हैं, रेमेडीज फाइंड। तो रेमेडी फाइंड करने में हमारे पास में एट द एंड प्रोसेस लगभग 3 4 5 रेमेडीज आती है जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो उसी तरीके से इस एपिडेमिक में आप देखिए कि हमने पूरा पिक्चर बना लिया, और पूरा पिक्चर बनाने के बाद लगभग हमारे पास में कुछ 2 3 4 5 रेमेडीज आ सकती है जो नियर बाय हो सकती है इस पूरी पिक्चर से, है ना। तो नाउ लेट him take the next step, which is to find in general the remedies that correspond to this epidemic. So by the aid of a repertory, अब repertory की मदद से he will write after each one of this symptom all the remedies that have produced the symptom. Having in this way gone through the entire schema, he can then begin to eliminate for practical purposes. And he will see that 6 or 7 remedies run through the picture and therefore are related to the epidemic corresponding to its whole nature. This may be called the group of epidemic remedies। तो ये जो 5 6 7 रेमेडीज इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद आई है, दिस रेमेडीज कैन बी कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एपिडेमिक रेमेडीज। कि ये रेमेडीज जो है ये इंडिकेटेड हो सकती है इस पूरी एपिडेमिक में, है ना, ये 5 6 7 रेमेडीज। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर एपिडेमिक and with this he will manage to cure nearly all the cases। The question now arises, which one is the remedy for each individual case। अब इतनी 5 6 रेमेडीज आ गई तो क्वेश्चन ये आता है कि हर इंडिविजुअल केस के लिए रेमेडी कौन सी है। उसका जवाब है when he has worked out the half dozen remedies। अगर उस इंसान ने लगभग 6 7 रेमेडीज के बारे में जान लिया है, he can go through the materia medica and get their individual picture so fixed in his head that he can use them successfully। तो अब ये 5 6 रेमेडीज जो आई है, इन रेमेडीज की मटेरिया मेडिका को एकदम अच्छे से समझ लो, याद कर लो, और जब पेशेंट आपके सामने आएगा फटाफट आपको डिफरेंशिएट करता है कि नंबर 1 वाली रेमेडी में तो ये सिम्टम होना चाहिए, ये पेशेंट में नहीं है, चलो रिजेक्ट। तो ये सिम्टम नंबर 3 वाली रेमेडी में, तो ये नंबर 3 से ज्यादा मैच करता है, तो इस इंसान को थर्ड वाली चाहिए। तो अब ऐसा होगा कि हमारे पास जो हजारों रेमेडीज है उसमें से आपका पिक्चर आ गया ये 5 6 रेमेडीज। तो आपको उन सब केसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका सक्सेस रेट ज्यादा हो सकता है। भाई बिकॉज आपने इतने लोगों पे स्टडी कर लिया है, एक जनरल पिक्चर बना लिया है, वो जनरल पिक्चर के बेसिस पे आपने 4 5 6 रेमेडीज निकाल दिए, और वो रेमेडीज को मटेरिया मेडिका पढ़ के पूरा दिमाग में बिठा लिया है, उसका डिफरेंशिएशन देख लिया है कि ये ए वाली रेमेडी बी से कैसे अलग है, सी से कैसे अलग है, डी से कैसे अलग है, और सबका डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद जब पेशेंट आपके सामने बैठेगा यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि इस पेशेंट को कौन सी रेमेडी जानी चाहिए। And thus he proceeds from generals to particular, and there is no other way to proceed in homeopathy। तो हमारा जो वे है, हमारा वे होना चाहिए from generals to particulars, and it is the only way to proceed in homeopathy। लिखा है मतलब उस पर इतना जोर दिया जा रहा है कि and there is no other way to proceed in homeopathy। He is called to a family with half a dozen patients।
तो अब इस डॉक्टर को एक फैमिली में बुलाया गया है जहाँ पे 6 पेशेंट्स के लगभग या हाफ डजन पेशेंट्स के लगभग in bed from this epidemic, and he finds a little difference in each case, so that one remedy is indicated in one patient and another remedy is indicated in another patient. There is no such thing in homeopathy as administering one of these remedies to all in the family because of a diagnostic name. तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। हम बहुत लोग गलत करते हैं और गलत होम्योपैथी के बारे में कुछ भी चलता है। यहाँ पे केंट सर कह रहे हैं कि इन होम्योपैथी देयर इज नथिंग लाइक यू विल बी प्रिस्क्राइबिंग वन रेमेडी फॉर ऑल ऑफ द सपोज कोविड से अफेक्टेड पेशेंट कि हाँ सबको एक ही आर्सेनिकम एल्बम दे दो, सब ठीक नहीं होंगे। 6 लोग हैं, 6 लोगों की सबकी सिम्टोमेटोलॉजी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, और वो 5-6 रेमेडीज में से सभी लोगों को अलग अलग रेमेडी लग सकती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपने 5-6 रेमेडीज निकाली है उन रेमेडीज से हटके भी किसी पेशेंट को कोई रेमेडी लग सकती है। चांसेस कम है बट लग भी सकती है अगर उसकी सिम्टोमेटोलॉजी उस तरीके की। तो यहाँ पे हमें ये चौंकाया गया, हमें ये समझाया गया है। तो आज से आगे भी अगर कोई एपिडेमिक आता है, कुछ भी आता है, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो हमारा ये काम बनता है कि हम इस चीज को अप्लाई करें और दूसरे लोगों को भी समझाए कि भाई देयर इज नथिंग इन होम्योपैथी लाइक कि एक बीमारी के लिए एक रेमेडी सभी लोग लेते हैं, है ना। तो मैं वापस पढ़ता हूँ लाइन, देयर इज नो सच थिंग इन होम्योपैथी एज एडमिनिस्टरिंग वन ऑफ दिस रेमेडीज टू ऑल इन द फैमिली बिकॉज ऑफ अ डायग्नोस्टिक नेम, कि भाई मैंने कोविड में ये दवाई निकाली थी, ये दवाई तुम सब खाते रहो, ऐसा नहीं होगा। Now, while one of the remedies in the epidemic group will most likely be indicated in many cases, yet if none of this should fit the patient, the physician must return to his original anamnesis to see which one of the other remedies is suitable. Very rarely will a patient demand a remedy not in the anamnesis. तो बहुत कम चांसेस है कि इन 5-6 रेमेडीज के अलावा भी आपका पेशेंट एपिडेमिक में कोई और रेमेडी डिमांड करेगा, बहुत कम है बट हो भी सकता है। तो नाउ मैं वापस पढ़ रहा हूँ, नाउ वाइल वन, बट ये 5-6 रेमेडीज जो है इनमें से चांसेस ये भी है कि कुछ एक या कोई दो रेमेडीज जो है वो आपको दिख रहा है कि ये यार बहुत ज्यादा केसेस में ये रेमेडी दिख रही है, बाकी जो 3-4 है वो भी इंडिकेटेड है बट वो कम केसेस में दिख रही है। कुछ एक या दो रेमेडी है जो बार बार देखने के लिए मिलती है, वही समझाया जा रहा है। नाउ while one of the remedies in the epidemic group will most likely be indicated in many cases, yet, if none of this should fit the patient, the physician must return to the original anamnesis to which one of the other remedies is suitable. Very rarely will a patient demand a remedy not in the anamnesis. Every remedy has in itself a certain state of peculiarities that identifies it as an individual remedy, and the patient has also a certain state of peculiarities that identifies him as an individual patient. And so the remedy is fitted to the patient. No remedy must be given because it is in the list. सुन लो वापस से कि कोई भी रेमेडी ऐसे ही नहीं देना है बिकॉज इट इज लिस्टेड, वो लिस्ट में उसका नाम है कि हाँ भाई ये रेमेडी है ना, इतने लोगों में इंडिकेटेड है ना, दे दो बिना सोचे समझे। डोंट डू दिस। नो रेमेडी मस्ट बी गिवन बिकॉज इट इज इन द लिस्ट, for the list has only been made as a means of facilitating the study of the epidemic. तो ये लिस्ट हमने बनाई इसीलिए थी कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, हमें हर केस में बार बार ढूंढना ना पड़े, इसीलिए हमने लिस्ट बनाई थी। बट इसीलिए नहीं बनी थी कि बिना सोचे समझे इसमें से कोई भी एक रेमेडी हर किसी को प्रिस्क्राइब करते रहो। थिंग्स कैन ओनली बी मेड इजी बाय एन इमेंस अमाउंट ऑफ हार्ड। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे सर भी मेरे को कहते हैं कि होम्योपैथी इज अग्नि परीक्षा, इट इज हार्ड वर्क। ये सिंपल टास्क नहीं है कि आया कोई भी पैरासीटामोल दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, ऐसे नहीं। तो हमें ये समझना है, और अगर हम इससे दिमाग में बिठा लेंगे कि यार मेरे को हार्ड वर्क करना है, होम्योपैथी इज नॉट सिंपल, तो हम बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ काम कर पाएंगे, जो लिटरेचर्स में लिखा है उन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाएंगे। थिंग्स कैन ओनली बी मेड इजी, चीजों को इजी जब भी बनाया जा सकता है जब वी आर रेडी टू पुट इन अवर हार्ड वर्क बाय एन इमेंस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। And if you do the drudgery in the beginning of an epidemic, the prescribing of yours will be rapid and you will find your remedies about cases of sickness
make malignant cases simple, so simply scarlet fever that classification would be impossible, stop the course of typhoid in a week and cure remittent fevers in the day. तो भले ही एपिडेमिक कोई भी हो, अगर आपने शुरुआती में ये लेबोरियस प्रोसेस, ये हार्ड वर्क कर लिया कुछ केसेस में, तो आपके लिए आगे पूरा एपिडेमिक को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब कर पाना विल बी वेरी इजी बाकी लोगों के कंपेयर। भले एपिडेमिक कोई भी हो, 20 25 30 लोगों की स्टडी इन डेप्थ अगर आपके पास हो गई, इमेज आपकी खुद की क्रिएट हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस डॉक्टर ने बोला कि इस एपिडेमिक में ये वाली रेमेडी दे दो, तो हम भी आंख बंद करके सिर्फ दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर एरिया में लोगों का जो सिम्टोमेटोलॉजी है दैट कैन बी डिफरेंट। तो हमें हमारे एरिया के कुछ पेशेंट्स जो है उन लोगों को देखना है, मतलब जो एपिडेमिक से सफर हो रहे हैं उन लोगों की स्टडी करना है, हमें खुद करना है किसी और की बातों को ना मानते हुए, और वो स्टडी आपको दूसरे पेशेंट्स में इजी प्रेस्क्राइबिंग में हेल्प करेगी बस। And if the physician does not work this scheme out on paper, he must do it in the mind. But if he becomes very busy and sees a large number of cases, it will be too much to carry in his mind. You will be astonished to find that if you put an epidemic on paper, you will forever be able to carry the knowledge of this in mind. And I have done this and have been surprised to find that after a dozen references to it, I did not need इट एनी मोर। तो अगर आप ये सब चीजें ऑन पेपर करते हैं तो यू विल रिमेम्बर दैट फॉर लाइफ टाइम। हमें हमेशा के लिए ये सब चीजें याद रहेगी। तो कैंसर कह रहे कि आई हैव डन दिस माई सेल्फ, मैंने खुद ने भी यही सब किया, और मेरे को फिर बाद में कोई भी चीज की कोई रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये दिमाग में फिट हो गया। सो नाउ यू मे से हाउ इज दिस इन रिगार्ड टू टाइफॉइड फीवर? इट इज नॉट अ न्यू डिसीज, it is an old form. The old practitioner has unconsciously made an anamnesis of this typhoid cases. He has unconsciously written it out in his mind and carries it around. It is not difficult to work out the group of typhoid remedies. It is not difficult to work out the group of typhoid remedies. And from this group he works. The same is true with regard to measles. Certain remedies correspond to the nature of measles, that is, when studied by its symptom and not by name. आगे पढ़ दो फिर डिस्क्राइब कर दो। Of course, every now and then will come up a rare and singular case which will compel you to go outside of the usual group. Never allow yourself to be so cramped that you cannot go outside of the medicines that you have settled upon as medicines. Say for measles, all your non-descript cases, of course, will get pulsatilla because it is so similar to the nature of measles. But it does not do to be too limited or routine, but be sure in administering a remedy that the indications are clear. Every busy practitioner thinks of Elanthus, Apis, Belladonna, and sulfur for malignant cases of scarlet fever, and yet he has often to go outside of that group. So the physician perceives in the disease what is it that constitutes the curative indication. तो ये ओवरऑल हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें पूरी डिसीज में क्या ठीक करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। नोइंगली अननोइंगली हमारे पास में ये बहुत सारी पिक्चर्स है, बहुत सारी डिसीजेस है जिसका हमारे सामने पिक्चर क्लियर है, हमें उसके सिम्टम पता है। हम टाइफाइड की बात करें हमारे सामने कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, हम कोई भी डिसीज की बात करें हमारे सामने कुछ सिम्टम है, क्योंकि उसका इतना सारा स्टडी हुआ है। और हर स्टडी के लिए, हर डिसीज के लिए सेम प्रोसेस के अगर आप फॉलो करें तो कुछ ग्रुप ऑफ, कुछ सेट ऑफ रेमेडीज जो है वो इंडिकेटेड होती है। बट हमें खुद को वहां पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई रेमेडी हो सकती है पेशेंट, ऐसा जरूरी नहीं है ना। सो द फिजिशियन परसीव इन द डिसीज फर्स्ट व्हाट इज इट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्यूरेटिव इंडिकेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यूरेटिव इंडिकेशंस किन किन चीजों का है। So this presents itself to his mind only when he is clearly conversant with the nature of the sickness, as for instance, with the nature of scarlet fever, of measles, of typhoid fever. The zymosis
the blood changes, etc. So that when they arrive, he is not surprised. When the typhoid state progresses, he expects the tympanic abdomen, the diarrhea, the continued fever, the rash, the delirium, and the unconsciousness. These things stand out as the nature of the typhoid. When therefore he goes to the materia medica, he at once calls up before his mind this nature of typhoid, and so is able to pick out the remedies that have such a nature. He sees in phosphorus, rust, bryonia, baptisia, arsenic, etc., low forms of fever corresponding to the typhoid condition. But when the patient jumps away out of the ordinary group of remedies, then it is that he has to go outside of the beaten track and find another remedy that has also corresponds to the nature of typhoid. तो हमें ओवरऑल मतलब इसमें जो चीजें मेरे को समझ में आ रही है मैं बता रहा हूँ कि हमें हर बीमारी के लिए कुछ थेराप्यूटिक ड्रग्स ऑलरेडी पता है। और ये थेराप्यूटिक ड्रग्स कैसे बनी? क्योंकि उस ड्रग पिक्चर का जो भी सिम्टोमेटोलॉजी है वो पूरा ही डिसीज पिक्चर से मिलता है ना? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था पल्सेटिला का कि जैसे ऑल योर नॉन डिस्क्रीट केसेस ऑफ कोर्स विल गेट पल्सेटिला बिकॉज मीजल्स के केस में, क्योंकि उसकी मीजल्स की पिक्चर पल्सेटिला से बहुत कुछ सिमिलर है, इसीलिए पल्सेटिला मोर फ्रिक्वेंटली उन केसेस में इंडिकेटेड होती है। तो वैसे ही हर डिसीज के लिए होता है कि एवरी डिसीज हैज देयर ओन सेट ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स जो उस डिसीज में इंडिकेटेड। हमने जिस तरीके से पूरी इमेज बनाई थी, वो 5-6 ड्रग्स निकाले थे, उसी तरीके से हर डिसीज की एक अपनी अपनी इमेज होती है और उस इमेज के बेसिस पे 5-6 5-10 ड्रग्स होती है। बट हमें यहाँ पे एक ही बात बताई जा रही है कि वी ओनली हैव टू प्रिस्क्राइब इंडिकेशंस को देख के उन 5-6 में से कोई भी लग सकती है, और उन 5-6 के अलावा भी कोई और रेमेडी, रेड रेमेडी या दूसरी रेमेडी आउट ऑफ द बॉक्स लग सकती है। ये सब डिस्क्राइब कौन करेगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा पेशेंट की सिम्टमेटोलॉजी। वो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कौन से लेके आया है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इसीलिए हमें हर पेशेंट में ये जानना है कि व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव, उसकी डिसीज क्या है, और ओवरऑल हमें ये सब इससे ये समझ में आ रहा है कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ डिसीज। हमें बीमारी पता होना चाहिए, और अगर बीमारी पता होगी तो हमें पता होगा कि सपोज थायराइड का केस है, या जैसे यहाँ पर टाइफॉइड की बात की जा रही है, कि अगर आप टाइफॉइड को जानते हो तो आपको ये पता होगा कि इस पेशेंट में फीवर आएगा, रैश आएगा, डेलीरियम आएगा, कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस आएगा। ये सब आप क्यों प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, क्यों जान पा रहे हो? बिकॉज यू नो द प्रोग्रेस, उस बीमारी का प्रोग्रेस किस तरीके से होता है। और आप उस डिसीज को अगर जानते हो, उसके कॉमन सिम्टम्स को अगर जानते हो, तो ही उस पेशेंट में से आप अनकॉमन पेक्यूलियर चीजें उठा पाओ। आप बोलोगे यार ये 4-5 चीजें तो चलो ठीक है, थायराइड की कॉमन है। सपोज एक रूमेटिज्म का केस, रूमेटिज्म के केस में भाई पेन तो होना, इट इज ऑब्वियस सी बात। बट अगर आपको मिलता है कि देयर इज पेनलेसनेस, कहीं पे पेन है, कहीं पे पेनलेसनेस है, बट वहां पे स्टिफनेस है, जो भी, तो ऐसी अपोजिट चीज या ऐसी पेक्यूलियर चीज जो उस बीमारी के लिए कॉमन नहीं है, अगर आप वैसी चीजें ढूंढ पाते हो तो आप एक राइट रेमेडी निकाल पाओगे उस केस को फिट करने। हमें ये ओवरऑल अभी इधर से मेरे को तो ये समझ में आया, मैं वो आपको डिस्कस, ये मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। एंड बाय दिस रिमार्क्स आई एम एंडेवरिंग टू होल्ड अप बिफोर यू what the physician regards as the curative indication of disease. By these remarks, I am endeavoring to hold up before you what the physician regards as the curative indication of disease. First, he sees the disease in general as to its nature. सबसे पहले हमने disease को in general देखा, उसका nature को जाना, and then when an individual has this disease, this individual will present in his own peculiarities the peculiar feature of that disease. एक इंसान को हाइपोथायरॉइड है, वो कुछ और सिम्टम पेक्यूलियरिटी शो करता है, कोई दूसरा कोई और सिम्टम शो करता है, कोई तीसरा कोई और सिम्टम शो करता है। हमें वो जो यूनिक फीचर है, जो पेक्यूलियर फीचर है, नॉर्मल फीचर जो डिसीज का है उसको छोड़ के जो पेक्यूलियरिटी है उसको समझना है, उसको जानना है, उसको पकड़ना है ना? पेक्यूलियरिटी, the peculiar feature of that disease. The homeopath is in the habit of studying the slightest shades of differences between patients and the little things that point to remedy. और ये छोटी छोटी बातें, ये little things will be our guide towards the remedy. तो हमें ये छोटे छोटे बारीक बारीक शेड्स को समझना है, तो हम एक राइट रेमेडी पे पहुंच पाएंगे।
और ये हमारा काम है एज अ होम्योपैथ. If we looked upon disease only as the old school physician sees it, we would have no means of distinction. But it is because of the little peculiarities manifested by every individual patient through his inner life, through everything he thinks, that the homeopath is enabled to individualize. तो अगर हम भी ओल्ड स्कूल की तरफ पूरी बीमारी को, एक डिसीज पिक्चर को एक नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं और हर इंसान में सिर्फ वही पिक्चर देखते हैं, तो हम में और ओल्ड स्कूल फिजिशियन में कोई फर्क नहीं. हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है टू सी दिस लिटिल शेड्स, ये लिटिल पेक्यूलियरिटीज जो हर इंडिविजुअल केस में डिफरेंट होती है. कभी मिलती है, कभी मिलना इज डिफिकल्ट, बट हमें हमारा स्किल्स को इतना इम्प्रूव करना है कि वी शुड फाइंड आउट दैट पेक्यूलियरिटीज इन ईच इंडिविजुअल केस, ताकि हम एक सही रेमेडी पे पहुंच पाए और उसे प्रेस्क्राइब करके उसे ठीक करें. सो ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक.